Hello dear friends. First of all, this video is for birthright citizenship. This video will be in English. If you want to hear about Hindi conversation, you can just forward a little bit of this video. The first part will be of English, the second part will be of Hindi. नमस्कार सभी को, ये जो वीडियो रहेगा ये वीडियो बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर आधारित है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको अंग्रेजी माध्यम में से समझना है तो शुरुआत का सारा माध्यम अंग्रेजी में है। आपको अगर हिंदी समझना है तो थोड़ा सा इस वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए, आपको इसका हिंदी संस्करण मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विथ बर्थ राइट सिटीजनशिप। व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली? लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कपल। इफ एन इंडियन कपल educated, I must not say an illiterate, an educated Indian couple wants to settle down in US, and if they are having a limited amount of money, limited amount of resources, and they know that if they're going to work over there, some on another day they have to return to the country and they want the citizenship. I'm taking an example of every country. Okay, this is known as a kind of sub branch of medical tourism known as birth tourism, in which they will decide to move to US, Los Angeles, San Diego, Washington DC, New York, Texas, Nevada, and they will find an hospital in which the child can be delivered, obviously after 9 months. Previously it was an amendment in USA Constitution, that's the 14th amendment, in which it was stated that if a couple's child is born in US, the child will get the citizenship of US as well as the parents will also get. So there was a win-win situation. So many couples from India, Mexico, Canada, and Brazil and other Latin American countries usually go to US, they deliver the child, they get the nationality and the citizenship of US through the child. So this is another way of entering in US. Now what happened? Recently, Trump is elected as the president. He signed an executive order. In this executive order, it is straight away mentioned that he has abolished the birthright citizenship for foreign nationals. Now, if you're going to US, you will be deemed as a working employee which is invited by the US company to work over there. If your child is born, that child will not have the citizenship of US. No doubt they will study. The child will study in US. Definitely, he or she will study. But they don't have the birthright, first of all. The second thing, you will also not get the citizenship. You have to fulfill certain criteria of US government. And it's a long process. Previously, it was a shorter process through a kid, through a child. So, why this is happening? This is happening because US wants to stop the change in race from United States of America's native people to other country people. USA is stopping the cosmopolitization of its country. No doubt it is very good. I appreciate the efforts of Trump. I would not criticize him. Any of the leader, if I would be a leader in India also, if I would be the president or prime minister, I would have taken the same kinds of decision. So we should appreciate him. He is thinking of his country. Every leader thinks of their own country. So it is not bad. We should not take it bad. Now what exactly he is doing? He said he will give visa on certain conditions. I'm taking an example of Indians. Now Indians have been told that only educated, qualified, skilled people will be given a working permit or a working visa by US government. Same applicable for other countries also. So many days, so many videos. I was always trying to explain everyone, get educated, get skilled. Not just degrees will help you. Your skill, your knowledge will help you. Whatever I have said in my past 3 years video is now proving the fact. I'm not exaggerating this topic or proving, but whatever I have said, now it is getting proved. Sometimes people think that teachers think too far.
We don't think too far. We work in present to make the future bright because future is always uncertain. We never think of the past, but we learn from the mistakes what we or anyone has done in the past. So get yourself educated because it's really hard now. Now many of the couples, no doubt they are Indians, Mexicans, Colombians, and some other countries, Chinese, who are working over there and they are having kids. Now Trump has given a deadline that he has taken the charge from 20th of January till 20th of February, whatever child gets born of a foreign national in US will be accepted as the citizen of US. Else, after that, there would be no acceptance. So many people are running, many people are rushing towards the hospital for a cesarean. They are not even worried that the child is born as abnormal or premature. They find it a kind of bait. They are treating their unborn kid as a bait to get the citizenship. I criticize this. So get yourself educated because if you want to work in US, now the dynamics are changed and it will be until 4 years, next 4 years. Mind my words. सबसे पहले सबको ये बताना चाहूंगा कि बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या होता है. देखिए, हिंदुस्तान से या मैं किसी भी कंट्री की बात करता हूँ, हम यूएस जाते हैं और यूएस जाके अपना बच्चा पैदा करते हैं. मान के चलो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे शादी हुई और वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और वाइफ ने सोची आखिरी का 8-9 महीना है, चलो वहीं पे बच्चा पैदा करते हैं. हस्बैंड वाइफ वहाँ चले गए. पहले ऐसा होता था कि वहाँ जब बच्चा पैदा हो जाता था तो बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी. यूएसए उसको एक्सेप्ट कर लेता था अपने नागरिक के रूप में. अब बच्चा अकेले तो रह नहीं सकता, उसके माँ बाप को भी नागरिकता मिल जाती थी. अपार्ट फ्रॉम वर्क परमिट, काम करने के मकसद से आप जा रहे, एक अलग बात है. काम करने के मकसद से आप जा रहे तो हिंदुस्तान की अगर आपने नागरिकता नहीं छोड़ी है तो आपको एनआरआई कहा जाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन. और अगर आपने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दी है तो आपको वहां का नेशनल माना जाएगा. अब ट्रम्प भाई साहब आ गए. ट्रम्प भाई साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर धड़ाधड़ साइन कर. ये हिंदुस्तान नहीं है कि हिंदुस्तान में लोकसभा राज्यसभा बैठती है, वहां पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तुरंत इंप्लीमेंट हो जाता है, रातों रात इंप्लीमेंट हो जाता है. उन्होंने साइन ये किया कि अगर यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा होता है, मैं उसको यूएस सिटीजन नहीं मानूंगा, मैं उसको एक फॉरेन नेशनल ही मानूंगा. नो डाउट वो काम कर सकता है, यहाँ पर रह सकता है, एजुकेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. ये उसने इसलिए किया है कि इलीगल तरीके से कोई इल मोटिव लेकर कि भाई यूएस में सेटल होना, यूएस की फैसिलिटीज लेनी है और शादी किया उसने अपने देश में और वहां जाके वो बच्चा पैदा कर रहा है, इसको रोकने के लिए कर रहा है. कोई भी देश का नेता ये करेगा, वो गलत नहीं कर रहा है, हम उसको गलत नहीं बोल सकते. अगर मैं भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर बैठूं तो मैं भी ऐसे कठोर निर्णय अपने देश के हित के लिए जरूर लूंगा. मैं तो इससे भयानक निर्णय लूंगा. मैं तो पॉपुलेशन को 1 साल के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, मैसिव प्रोसेस में. वो कैसे करूंगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा किसी को हर्ट हो सकता है. ठीक है, मैं हर्ट नहीं करना चाहता. हम एजुकेटिव चैनल में हैं, हम किसी को हर्ट नहीं करते. फिर अब बात आ जाती है ये कि अब कैसे करें जो लोग ऑलरेडी वहां पे औरतें हैं, जो वहां पे हस्बैंड वाइफ जो यहाँ पे H1B वीजा में गए हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या. उनका बच्चा होने वाला होगा, बच्चे को निकाल के थैली के सामान फेंक तो सकते नहीं कि जाके समुद्र में फेंक दिए, पैसिफिक ओशन में या अटलांटिक ओशन में फेंक दिए, है ना. कर्ण तो है नहीं वो कि टोकरी में रखे, सूत काटने वाले व्यक्ति ने उसको पाल लिया, बाद में वो कर्ण बन गया. ऐसा तो होता नहीं है, तो कलयुग है. उसने एक डेडलाइन दिया है कि बोले उसने 20 तारीख को, ठीक है, ट्रंप ने शपथ जो ली वो 20 तारीख को ली, 20 जनवरी को. उसने बोला 20 फरवरी तक के बीच में जो भी बच्चों की डिलीवरी होंगी, चाहे वो फॉरेन नेशनल बच्चे क्यों ना रहे, मैं उनको देश की नागरिकता के तौर पे यानी यूएस सिटीजनशिप दूंगा और उन्हें एक्सेप्ट करूंगा कि वो हमारे देश के नागरिक. उसके बाद पैदा होने वाला कोई भी बच्चा एक्सेप्ट नहीं होगा. अब लोगों ने, चाहे वो मेक्सिको के कपल रहे, यूएस के कपल रहे, या इंडिया के रहे, या फिर ब्रिटेन के रहे, या ब्राजील के रहे, जो लोग जाते हैं चाइना वगैरह के, वो हस्बैंड वाइफ जाती है, अकेला रहता नहीं. एवरीवन नीड्स अ फैमिली. वो लोग ना हॉस्पिटल दौड़ गए, कुछ बच्चा गिराने के लिए दौड़े, कुछ बच्चे को समय से पहले निकालने के लिए दौड़े, सिजेरियन के लिए लाइन लगा रहे.
कि भाई बच्चा जल्दी आ जाएगा। अब देखो कि माँ बाप कितने बेवकूफ है, या तो इन्होंने साइंस पढ़ा नहीं है, या तो पढ़ने के बाद ये बेवकूफ खुद को बना रहे। 9 महीने से पहले 8 या 7वें महीने में अगर आप बच्चे को डिलीवर करते हैं तो बच्चा जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग पैदा हो सकता है। इस बात को कोई समझ नहीं, तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि 20 फरवरी के पहले आप ऐसे डिलीवरी में, मान के चलो कोई लेडी है जिसकी 6वें महीने की प्रेगनेंसी चल रही है, कैसे 6वें महीने में बच्चे को निकाल दीजिए यार, बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ है। तो मैंने कई वीडियोस 3 साल पहले से लगातार लोगों को बोल रहा हूँ, गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, गेट योर सेल्फ एजुकेटेड। लोग डिग्रियां ले रहे हैं मगर एजुकेशन एक्चुअल में एजुकेट नहीं हो रहे। उसने ये तक बोला है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं दुनिया के लोगों को यूएस में आके काम करने नहीं दूंगा, मगर मैंने क्राइटेरिया बदल दिया। स्किल्ड पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन ही इंडिया है, मतलब यूएस जाएगा। अब इंडिया से तो ऑब्वियसली इंजीनियर्स जाते हैं, क्योंकि इंडिया इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनसे भरा हुआ है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम यूएस पसंद भी करता है। यूएस को मालूम है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बच्चे को घस नहीं सकता है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को घस घस के चमका डालता है, और कोई भी एनवायरमेंट में इंडिया का बच्चा काम कर सकता है। तो पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी। और अब जो अगर आप वो ख्वाब देख रहे हैं कि वहां जाके बच्चा पैदा करके वहां पे सिटीजनशिप ले लेंगे, तो अब वो फिलहाल 4 साल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब बैठने वाले हैं 4 साल तक। और 4 साल तक वो हंटर हर कंट्री पे मारने वाले हैं। गलत नहीं है, सही है, अपने देश के लिए सोचना भी चाहिए। हमारे यहाँ के नेता अपने देश के लिए नहीं सोचते भाई, वो सोचता है, गलत नहीं है। हम उसको बिजनेसमैन बोले, कुछ भी बोले, बट वो अपने पब्लिक के लिए सोचता है, पर हमें भी सोचना पड़ेगा। तो मैं हमेशा से जो बोलते आया हूँ वही बोलता हूँ, डिग्रियां इकट्ठी मत करो, क्वालिटी वाली डिग्री इकट्ठी करो, नॉलेज इकट्ठा करो, स्किल्ड बनो। मेरी बातें बहुत चुभती है लोगों को, बट मैं जो बोलता हूँ, जो देख रहा हूँ यार, मैं एजुकेशन सिस्टम में हूँ, मेरे को मालूम है। आप लोग सिर्फ एजुकेशन, बच्चे जो आज के हैं ना, वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे। पास होने मत पढ़ो, स्किल्ड बनो। स्किल्ड नहीं तो कोई काम के इंजीनियर नहीं हो। अगर आपको 2 वायर जोड़ना नहीं आता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझता, यू आर वेस्ट। मैं आपको बड़ा सा ओशन का नाम बताता हूँ, पैसिफिक ओशन, डूब मरो वहां जाके। कम पढ़े तो घर में कटोरी रहती है, उसमें पानी लेके डूब मरो। तो एजुकेट करो, पढ़ लिखे बनो। विद दिस थॉट मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। Hope I have cleared you about this recent scenario. We'll get back to you if there is some more development. उम्मीद करता हूँ आपको मैंने सारी जानकारी संक्षिप्त में दे दी है। अगर कोई इसमें और बदलाव होता है, कोई डेवलपमेंट होता है, मैं आपके समक्ष दोबारा हाजिर होकर आपको सारी विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।